Hello students, how are you all? Uh, Today the topic is structure of midbrain, structure and function of midbrain. मेरा चूँकि टारगेट जो है वो अचीव नहीं हुआ था, दैट इज़ वाई मैं सैटरडे को भी अपलोड कर रही हूँ वीडियो. आपको जब टाइम मिले आप इसको सुन लें, देख लें और समझ लें, ठीक है. द टारगेट वॉज अप टू दी स्पाइनल कॉर्ड, सो दैट इज़ वाई टारगेट चूँकि अचीव नहीं हुआ था. एचओडी हमारे साथ हमारी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट जो हैं वो हमारे साथ शेयर करती हैं टारगेटेड वर्क. सो द टारगेट वाज नॉट येट अचीव्ड, सो दैट्स व्हाई आई एम डिलीवरिंग दिस लेक्चर ऑन सैटरडे. काइंडली आप इसको जो है वो समझ लें जब भी टाइम मिले, ठीक है. अपने पास सेव कर लें, जब भी टाइम मिले आप इसको देख लें. नाउ आपके पास मिड ब्रेन के टॉपिक में लिखा था कि आपका ये जो मिड ब्रेन है, इट इज़ cerebral hemisphere, and then we have the midbrain, pons, medulla and spinal cord and the cerebellum. ठीक है. Cerebral hemisphere, midbrain, pons, medulla, spinal cord and cerebellum. Right. This is the total view of the central nervous system plus spinal cord. This is the frontal view in which I am showing the medulla oblongata, pons and midbrain. This is the back view and this is the view showing the midbrain. ठीक है. So as inside your book they haven't mentioned the proper structure of midbrain, so it is important to discuss that why they are saying that कि midbrain जो है इसका फंक्शन ये है कि it helps in the coordination and relay of visual and auditory information. This is the first line on book page number 99. The topic is the brain, the midbrain function. That the midbrain function is in the coordination and relay of visual and auditory response. So यहाँ mention नहीं था, proper diagram नहीं थी, so that is why थोड़ा सा preparation में time भी लग गया. ठीक है. So this is the structure of a midbrain. Here we have the cerebral hemispheres and the midbrain. Inside the midbrain we have the interpedunculaire fossa, that is the depression, and we have right side and left side of the midbrain. And as you can see in this diagram, this is the back view. In front we have the crus cerebri, that is not included in your course, but आपको अगर जानना है कि ये कैसे ऑडिटरी रिस्पॉन्स और विजुअल रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व है या ऑडिटरी इंफॉर्मेशंस और विजुअल इंफॉर्मेशंस में इन्वॉल्व है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो मिड ब्रेन है इसका ये बैक व्यू है. इन फ्रंट इस पे क्रस सेरेब्राई होते हैं लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में, और बैक व्यू में यहाँ पर कॉलिक्यूलाई होते हैं, स्वेलिंग्स होती हैं, 4 स्वेलिंग्स. The upper 2 swellings, they are called the superior colliculi. The the back one is called the inferior colliculi. Superior colliculi and the inferior colliculi. Superior is the upper and inferior is the lower. There are total 4 swellings, and we have the upper 2 superior and the lower 2 inferior colliculi. Actually these 2 colliculi are related with the sense of visual system and auditory system. So superior is connected with the concerned with the visual system, and inferior is concerned with the auditory system. The information from the optic nerve, it is also connected with the superior colliculi. ठीक है. Similar is the case the auditory. अगर मैं यहाँ पर आपके लिए आई बना दूँ, तो आई से जो ट्रैक जा रहा था, अगर आपको थोड़ा सा याद भी हो, कल मैंने आपको ऑप्टिक ट्रैक बताया था, तो ऑप्टिक ट्रैक से कुछ कनेक्शंस जो हैं यहाँ पर सुपीरियर कॉलिक्यूलाई से भी हैं. ठीक है. तो जब कभी कोई आई से रिलेटेड कोई काम है, चाहे विजुअल है चाहे कोई पेन है, तो वो रिसीव करेगा ये आपके सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स वाला पार्ट जो है, जिसमें थैलेमाए थे, और आपके पास मैंने आपको बताया था कि आपकी जो ऑप्टिक ट्रैक है वो किसका पार्ट है, डायनसेफेलॉन का या टीलेनसेफेलॉन का.
सो आपने फिर मुझे बताना है कि इट इज़ द पार्ट ऑफ डाइनसेफेलॉन और टीलेनसेफेलॉन ऑप्टिक ट्रैक। और यहाँ से फिर आपके पास यहाँ कनेक्टेड होता है सुपीरियर कॉलिक्यूलाई से भी। एंड द इन्फीरियर कॉलिक्यूलाई इज ऑल्सो कंसर्न विद द ऑडिटरी। अगर एयर से कोई भी रिस्पॉन्सेज, कोई भी सेंसेस आ रहे हैं तो वो ट्रैक्स के थ्रू जाएंगे और आपके इन्फीरियर कॉलिक्यूलाई से होते हुए ये दोनों पाथवेज से होते हुए इंफॉर्मेशन जो है वो ऊपर जाएगी। ऊपर कहाँ जाएगी? सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स को और कॉर्टेक्स को जाएगी। ठीक है, सो दिस इज दी diagram which is related with the midbrain, the function of midbrain, that it is concerned with the visual and auditory responses. रिड्यूस यहाँ इस वजह से लिखा हुआ है कि इतना ज़्यादा इसका फंक्शन नहीं है, क्योंकि बेसिक फंक्शन ऑप्टिक ट्रैक्स और ऑडियो विजुअल रिफ्लेक्सेस परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर इसका ये जो रोल है बहुत कम रोल है। ठीक है, इस वजह से कहा कि ये रिड्यूस है। और यहाँ पर रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है थ्रू मेड्यूला इन द हाइंड ब्रेन। यहाँ पर आपके पास ब्रेन में ट्रैक्स होते हैं, ट्रैक्स असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स। नाउ व्हाट आर ट्रैक्स? आपके पास न्यूरॉन्स की कलेक्शन होती है। कुछ न्यूरॉन्स जो हैं वो अप टू डाउन जाते हैं और कुछ न्यूरॉन्स जो हैं वो डाउन टू अप जाएंगे। ठीक है, आपके पास इंफॉर्मेशंस अगर डाउन से अप जा रही हैं तो वो असेंडिंग ट्रैक्स होंगे, अगर अप से डाउन जा रही हैं तो वो डिसेंडिंग ट्रैक्स होंगे। असल में ये ट्रैक्स क्या हैं? दे आर एक्चुअली द बंडल ऑफ एक्सॉन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट आर मूविंग अप एंड डाउन। मैंने आपको बताया था कि वाइट मैटर क्या होता है या ग्रे मैटर क्या होता है। कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इज कॉल्ड ग्रे मैटर एंड कलेक्शन ऑफ वाइट बंडल्स इज कॉल्ड दी वाइट मैटर। तो आपके पास ये ऐसे बंडल्स हैं जो अप एंड डाउन जा रहे हैं ब्रेन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इसी तरह राइट लेफ्ट भी हैं और फ्रंट एंड एंटीरियर और पोस्टीरियर भी हैं। सो वी डिवाइड द वाइट मैटर इनटू वर्टिकल लाइंस यानी वर्टिकल ट्रैक्स और एसोसिएटिव फाइबर्स और ट्रैक्स। राइट, हम कह सकते हैं कि ये ट्रैक्स जो है ये बंडल्स बना लेते हैं, जिसको फिर हम कहते हैं कि दिस इज रेटिकुलर फॉर्मेशन। द रेटिकुलर फॉर्मेशन इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम डाउन टू अप। यहाँ पर ये रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है आपके मिड ब्रेन से स्टार्ट होकर आपके पॉन्स तक रहती है। आपकी ये डायग्राम जो है बहुत क्लियरली शो किया गया है इन दी नेक्स्ट पेज, जिसमें आपको बताया गया है। देखिए, ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज द रेटिकुलर फॉर्मेशन। एक्चुअली रेटिकुलर फॉर्मेशन आपके पॉन्स से लेके आपके मिड ब्रेन तक एक्सटेंड करती है। और ये वो इंफॉर्मेशन या ये वो ट्रैक्स हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन, ये एक इंटरकनेक्शन है न्यूक्लियाई की, एक दूसरे से कनेक्शंस हैं दैट आर लोकेटेड थ्रू आउट दी ब्रेन स्टेम एंड इट इज द लेटेंट वर्ड विच इज कॉल्ड दी नेट। रेटिकुलर मीन्स नेट, इन द फॉर्म ऑफ नेट ये ट्रैक्स पूरे के पूरे ब्रेन में स्प्रेडेड हैं। ठीक है, ताकि इंफॉर्मेशंस आपके पास जाएं भी और वापस आए भी। ठीक है, ऊपर जा भी रही हैं, असेंड भी हो रही हैं और डिसेंड भी हो रही हैं। ठीक है, सो आपके पास दे आर द फॉर रीचिंग नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स हाई टू द ब्रेन। देखिए, ये हायर ब्रेन सेंटर्स को जा रही है। राइट, लेट्स से फॉर एग्जांपल जब आप रात को सोते हैं तो ये रेटिकुलर फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक जो है, डॉक्टर्स कहते हैं कि ये रेटिकुलर फॉर्मेशन सारे दिन में इतना काम करती है, आपकी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करके हायर ब्रेन्स तक पहुँचाती है। यानी हम कह रहे हैं ना कि यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में रिफ्लेक्स एक्शन होता है, रिफ्लेक्स एक्शन सेंसरी न्यूरॉन्स लेकर आते हैं, मोटर न्यूरॉन्स जल्दी से रिस्पॉन्स देते हैं। लेकिन कुछ कोलेटरल ब्रांचेस भी थी। देखें, अगर आपके पाँव में कोई चोट लगती है तो आप इसको रिफ्लेक्स एक्शन से फ़ौरन से हटा लेते हैं, लेकिन आपके ऑडिटरी और विजुअल रिस्पॉन्सेस भी काम करेंगे। आप अपनी आई से देखेंगे कि मुझे ज़ख्म कहाँ पर लगा है, ठीक है, या चोट मुझे कहाँ पर लगी है। तो ये सारे ट्रैक्स हायर ब्रेन सेंटर्स तक भी जाएंगे। ठीक है, तो ये अप भी जा रहे होते हैं और डाउन भी जा रहे होते हैं। डिसीजंस लेना देना ये आपके हायर ब्रेन सेंटर्स का काम होता है। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक ये इंफॉर्मेशन जाएगी।
अब मैंने आपको कहा कि जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल रात के वक्त ये रेटिकुलर फॉर्मेशन सारा दिन काम करके इतना थक जाती है, अगर मैं आपको आम अल्फाज में बताऊं कि ये रेटिकुलर फॉर्मेशन इतना टायर्ड हो जाता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप डीप स्लीप हैं, साउंड स्लीप है आपकी, तो आप थोड़ा सा टच या कोई वॉइस नहीं सुन पाते। उसकी रीज़न ये है कि ये आपके पास यहाँ से आपके इंफॉर्मेशंस तो जा रही हैं कि कोई चीज़ टच हुई है, ठीक है, इंफॉर्मेशंस तो जा रही है कि कोई चीज़ साउंड प्रोड्यूस हुई है, लेकिन वो यहाँ तक फिर रुक जाती है क्योंकि रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है उसको हायर ब्रेन सेंटर्स तक फिर नहीं लेकर जाती। जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो फिर इसके बाद क्या होता है, रेटिकुलर फॉर्मेशन दोबारा अपने काम स्टार्ट कर देता है और अपने मैसेजेस जो हैं वो हायर ब्रेन सेंटर्स तक पहुँचा देता है। तो हम कह सकते हैं इन अ शॉर्ट वे कि रेटिकुलर फॉर्मेशन आर दी interconnected tracks, the interconnected nuclei, the set of nuclei which are connecting the our lower body with the upper body and the upper body with the lower body, ठीक है। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, इस डायग्राम में मैंने शो किया है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई चीज़ आपके फुट को, लेग को अगर लगे तो ये इन्फॉर्मेशन जाएगी हायर ब्रेन सेंटर्स को। तो देखिए ये ट्रैक्स हैं जो अप भी जा रहे हैं और डाउन भी जा रहे हैं। सो सम डिसीजंस आर मेड विच आर मूविंग अपवर्ड एंड, मतलब ऐसे डिसीजंस जो कि हायर लेवल तक जाते हैं आपके डिसीजंस, और ये कौन लेके जा रहा है, आपके सेंसरी न्यूरॉन्स सेंस कर रहे हैं, हायर ब्रेन सेंटर्स तक लेके जाएंगे और मोटर न्यूरॉन्स एक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली द रेटिकुलर फॉर्मेशन विच इज इम्पॉर्टेंट इन द मिड ब्रेन। सिर्फ मिड ब्रेन से इसका कंसर्न नहीं है, इसका कंसर्न ओवरऑल दी ब्रेन स्टेम से है। और ब्रेन स्टेम में आपको पता है कि मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला आ जाते हैं, ठीक है। तो जब पॉन्स, मेडुला और मिड ब्रेन आ जाते हैं, रेटिकुलर फॉर्मेशन सिर्फ आपके पास मिड ब्रेन तक ही कनेक्टेड या कंसर्न नहीं है, इसका ताल्लुक तीनों के तीनों पार्ट से है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, दिस इज़ वेरी ईजी। और यहाँ मुझे इसलिए बताना ज़रूरी लगा कि विदाउट एनी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन द स्टूडेंट कैन नॉट अंडरस्टैंड। सो जब मैं नहीं समझ पाती तो स्टूडेंट कैसे समझ पाएंगे, ठीक है ना। द हाइंड ब्रेन, नेक्स्ट पार्ट इज द हाइंड ब्रेन एंड इट इज़ वेरी ईजी। यहाँ पर आपके पास हाइंड ब्रेन में कौन सा पार्ट आ जाएगा, इसको तो हम फोर ब्रेन कहते हैं, इसको मिड ब्रेन कहते हैं, इसको हम हाइंड ब्रेन कहते हैं, ठीक है ना। तो हाइंड ब्रेन में आपके पास आ जाते हैं पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लंगेटा। पॉन्स, cerebellum, medulla oblongata, these are the part of hind brain, okay। now आपके पास pons क्या है कि it lies above the medulla oblongata, of course it lies above the medulla oblongata, the pons lies above the medulla oblongata, sometimes it is framed as a question in the MCQ, right। and the pons act as a bridge for the conduction of impulses। pons क्या करता है, it is acting as a bridge। कैसे ब्रिज, यानी इंफॉर्मेशंस को pons कलेक्ट कर रहा है, इंफॉर्मेशंस कलेक्ट हो रही है तो ये एज अ ब्रिज एक्ट कर रहा है, ठीक है। द pons is acting as a bridge for the conduction of impulses between the cerebellum। आपके पास सेरिबेलम से भी कनेक्शंस इसके होते हैं, सेरिब्रल पेडंकल के थ्रू या आप कह सकते हैं फाइबर्स के थ्रू। सो द पॉन इज एक्टिंग लाइक एज अ ब्रिज एंड इट कनेक्ट्स द सेरिबेलम विद द पॉन्स। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्शंस रखते हैं। इट इज ऑल्सो कंसर्न विद द रेट ऑफ ब्रीथिंग। सो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि आपके पास ब्रीदिंग सेंटर्स कहाँ पर हैं। फॉर द कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस बिटवीन द सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा एंड सेरिबेलम, इट इज ऑल्सो कंसर्न विद द रेट ऑफ ब्रीदिंग, स्लीपिंग एंड वेकफुलनेस। Cerebellum is the second largest portion of the brain. Which is the largest portion of the brain? First largest. The first largest is cerebrum. The second is cerebellum. Okay. Now, the cerebellum consists of central lobe and two lateral lobes. तो cerebellum को भी हम डिवाइड कर देते हैं central lobe में and lateral lobes. Lateral sides को कहते हैं, center यहाँ पर होगा, ठीक है। Central lobes
two lateral and central lobes. The cerebellum coordinate the muscle activity. So question पूछा जा सकता है, the muscle activity is coordinated by pons, medulla or cerebellum. It is cerebellum, right? If the cerebellum is destroyed in case of old age people specifically, then the movement becomes shaky, jerky, and it is disturbed. The movement is disturbed. The medulla oblongata is the posterior most portion of the brain. So this is pons, this is medulla, this is the spinal cord. आपके पास ये जो आ जाता है pons, ये किससे कनेक्टेड है? आपके पास ये ऐसी कंडक्शन है जो कि आपके पास सेरिबेलम और पॉन्स एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं. फिर आपके पास जब बात आ जाती है सबसे लास्ट पोर्शन की, तो वो मेड्यूला ऑब्लंगेटा है. और मेड्यूला ऑब्लंगेटा दैट इज द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इट इज द नैरो पार्ट एंड इट इज कॉन्टिन्यूस विद द स्पाइनल कॉर्ड. और मेड्यूला ऑब्लंगेटा जो है वो एक हाईवे है कम्युनिकेशन बिटवीन द बॉडी एंड द ब्रेन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. And special reflexes such as heartbeat, respiratory movements, salivary secretions, swallowing, vomiting, coughing and sneezing are located in the medulla oblongata. This is very important according to the examination point of view, that which part of the brain is concerned with breathing, which is concerned with the respiratory system. So that is medulla oblongata.